Assalamu alaikum class. Let's continue with the chapter work, power and energy. We have already taken 2 classes of this chapter. In the first class we learnt about work. In the second class we have learnt about power. Okay. And today we will learn inshallah what is called energy and the types of energy. Okay. So let's start with the term energy. What is called energy? We have to understand this. Suppose there's a machine which is doing some work. Okay, so basically that machine is doing some work. So why is that machine doing work? Because it must be getting it actually it needs some energy to do the work. Okay, suppose you are doing some work. Okay, so it means that you must have some energy to do the work. Okay, we give example now that if a person can do much of work, then we say that that person is energetic. It means if the person has more energy, that person can do more work. Okay, so basically we say that to do work energy is required. Okay, so basically this is the definition of energy. What is energy? Energy is the capacity of a body to do work. Okay, what is energy? Okay, so this is the definition of energy. Energy is the ability of a body to do work. ठीक है, एक चीज़ को काम करने का जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी. अगर कोई पर्सन मतलब हम सिंपली बता दें कोई भी चीज़ अगर वर्क कर रहा है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है. या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर किसी के पास एनर्जी है, ठीक है, तो वो वर्क परफॉर्म कर सकता है. वो कोई मशीन भी हो सकता है, ये कोई इंसान, वट एवर. ओके, इफ समथिंग हैज़ एनर्जी, दैट समथिंग हैज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. क्लियर? सो द unit of energy is same as that of work. Okay, so basically we can say that in CGS system the energy has the unit of erg. So in CGS system it is erg and in SI system it is joule. Okay, there are many types of energy. Okay, you must have learned it in junior classes. For example, mechanical energy, heat energy, chemical energy, nuclear energy, electrical energy, light energy, sound energy and so on. Okay, so basically in this chapter we are going to learn only about mechanical energy. So the types of energy are there are many types, but I have written only few of them. For example, mechanical energy, heat energy, sound energy, light energy, nuclear energy, chemical energy and so on, etc. Okay, but in this chapter we are going to learn only about mechanical energy. Okay, so what is mechanical energy? So the definition of mechanical energy is the ability of a body to do mechanical work is called its mechanical energy. What is the meaning of mechanical work? Mechanical work includes the motion of a body, okay, or the change of configuration of a body. Okay, so these are also work now. Okay, so to do this kind of mechanical work, the energy required is called mechanical energy. Okay, so the mechanical work can be of two types. Okay, one is the work due to configuration and one work due to motion of a body. So similarly there are two types of mechanical energy. Okay, one is called potential energy, another is called kinetic energy. What is potential energy? The energy of a body, okay, due to its configuration, okay, or change of state or change of position of a body is called potential energy. Listen again. So the definition of potential energy is the energy acquired by a body by virtue of its position or configuration is called potential energy. Okay, let me explain what is the meaning of the energy acquired by virtue of its position or configuration. Basically, suppose you have a rubber band in your hand. Okay, and if you stretch that rubber band, okay, its length will increase now. But what is happening here? What is the change from the initial position to the final position? Basically we can say that the configuration of the rubber has been changed now. Okay, so basically you have done some work to change the configuration of the rubber band. So that work, where has that work gone? That work has been stored in the form of potential energy in the rubber itself. बात को ध्यान से सुनो. मान लो तुम्हारे हाथ में एक रबर है, ठीक है,
तो उसको तुम उसको टान के उसको बहुत लंबा कर दिए, ठीक है ना, उसको अभी भी उसको उसी हाल में रखे हुए हो, मतलब उसको छोड़ नहीं रहे हो। वो तो वो लंबा है, मतलब क्या हुआ है कि बेसिकली वो लंबा कैसे हुआ, क्योंकि तुमने उसमें एक वर्क किया है ना, बस में। तो वो जो वर्क तुमने किया है वो वर्क कहाँ चले गया, ठीक है। एक्चुअली वो जो वर्क है दैट वही वर्क उस रबर में स्ट्रेच्ड फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। बात समझ में आया? तो यानी ये जो एनर्जी कैसे स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रबर बैंड, है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ उसी लिए हुआ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल है कि मान लेते कि स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को तुम टान के उसको एकदम लंबा कर दिए हो, ठीक है, तो यहाँ भी इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, तो स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। उल्टा भी बोल सकते थे कि स्प्रिंग को अगर तुम उसको खूब ताकत लगा के उसको चिपटा कर दियो, है ना, तो उसमें भी स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गया है जो कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से हुआ है, ठीक है। So the energy stored in the rubber band or spring was due to its configuration. Okay. What about position? Suppose you have something in your hand. Okay. And you lift it up to some height. So basically that body has changed its position now. Okay. So that body has stored some energy. That energy is the पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मान लो ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इलास्टिक बैंड में हुआ या फिर स्प्रिंग में हुआ, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किसकी वजह से हुआ, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से हुआ। लेकिन अगर पोजीशन चेंज होने का एग्जांपल देंगे, ठीक है, इससे मान लेते हैं उसका एग्जांपल क्या है। सपोज तुम्हारे हाथ में कोई सामान है, ठीक है, तुमने उसको कुछ ऊंचाई तक उठा के लाए हो, ठीक है, तो उसमें उस बॉडी में पोजीशन चेंज हुआ है और उसमें एक एनर्जी स्टोर हुआ है, वही है पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी कैसे स्टोर हो गया, देखो तुमने कुछ वर्क किया है ना, मतलब बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल जो सीखा था, हम लोगों ने देखा था ना कि किसी चीज़ को, सामान को ऊंचा उठाने में कुछ वर्क करना पड़ता है ना, तो वो जो वर्क है वो कहाँ गया, वही वाला वर्क उस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। तो कोई चीज़ ऊंचाई में लेके गए तो उसमें एनर्जी उसमें स्टोर हुआ, उसमें एनर्जी उसका बढ़ गया, है ना। या फिर एक और एग्जांपल हम बता सकते हैं कि जैसे मान लो पानी के टैंक में अगर पानी भर रहे हैं, है ना, तो मतलब पानी नीचे से ऊपर गया तो भी उसका पोजीशन चेंज हुआ पानी का, है ना, यानी उस टैंक में पानी जमा हुआ है, उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। क्लियर? So far we have learnt that if we lift a body to a certain height, potential energy is stored in that body. So now let's calculate what is the amount of energy stored. Basically that potential energy stored in the body depends on what things. Okay. So we have already learnt that the energy stored in a body is equal to the work done. Now so suppose there is a body of whose mass is m, okay, and that body is lifted to a height h against gravity. Okay, कहाँ मान लिए हम क्या बता रहे हैं कि सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, कोई भी सामान है उसका मास m है। So I am saying that suppose there is a body whose mass is m, okay, and that thing is lifted to a height h from the surface of earth against the gravity. Okay, so there is a body and suppose this is the earth level and a body of mass m is lifted to a height h. Okay, so what is the work done in this case? That work done will be the potential energy stored in that body now. So basically we have to find, so what is the work done in lifting the body, that we are going to calculate. So that work done will be equal to the force into displacement. So what is the force you have to apply? Basically the weight of the body is the force you have to apply now. उस बॉडी का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना हाइट उठाए हो तुम, ठीक है, ये हाइट। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो, क्या उसका फॉर्मूला होता है, मास m है ना, तो किसी भी चीज़ का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। हाइट कितना h है ना। तो ये क्या तुम्हारा हो गया, ये वर्क हुआ। अब यही जो तुम वर्क किए हो बेसिकली यही वर्क तो उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगा ना। ओके, so this work is stored in the body as potential energy. So basically potential energy is equal to work, which we have found is mgh. So this is the formula of potential energy. Pe is equal to mgh. Okay,
m is the mass, g is the acceleration due to gravity, and h is the height up to which the body has been lifted. Okay, you need to understand this. Basically what is h? I'm elaborating this. h means it is the change of height, we can say. ठीक है, मान लो एक बॉडी ऑलरेडी 2 मीटर ऊंचाई पे रखा हुआ है, ठीक है, अब तुम उसको वहां से तुम 3 मीटर ऊंचाई पे लेके गए, ठीक है, तो तुम्हारा h का वैल्यू कितना होगा? h होगा तुम्हारा 3 मीटर, ठीक है, मैंने पहले से था 2 में, तो वहाँ से 3 मीटर ऊपर ले गए, मतलब उसको पहुँचा दिए कितना हाइट तक? 5 मीटर तक पहुँचा दिए। तो हाइट का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे? मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो कितना लेंगे एच का वैल्यू? एच का वैल्यू हम लोग लेते हैं चेंज ऑफ हाइट। क्लियर? सो एच इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ हाइट, ठीक है ना। तो और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मान लेते कि ये जो एच हाइट है कोई बिल्कुल सीधा लेके गया, उसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। मतलब एक बॉडी को यहाँ से यहाँ पे कोई डायरेक्टली ले गया एच हाइट, ठीक है, तो वो यहाँ से कोई ऐसे नहीं लेके जाए, इस रास्ते से नहीं लेकर जाके वो उसको ऐसे अगर लेके जाता तब कितना उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता? तब भी उसमें उतना ही एनर्जी स्टोर्ड होता है, क्योंकि दोनों के केस में क्या हुआ? हाइट सेम है, सेम डिफरेंस ऑफ हाइट है, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? ओके, सो चाहे तुम तिरछा लेके जाओ, ये बिल्कुल सीधा लेकर जाओ, अगर बिल्कुल सेम हाइट तक पहुंच रहे हो, ठीक है, ज़मीन से, तो दोनों ही के केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता है। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ज़मीन से 10 मीटर ऊपर गया, तब वहाँ पे एच का वैल्यू कितना लेंगे? 10 मीटर ही लेंगे, क्योंकि हाँ अब इस केस में हम लोग ज़मीन को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। मतलब देखो एच में क्या होता है, एच निकालने के लिए 2 पॉइंट का चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ हाइट, तो डिफरेंस में 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ज़मीन से ही उठा रहे हैं तो ज़मीन को पहला पॉइंट लेंगे, मतलब जो कि 0 मीटर पे है ना, इनिशियल पोजीशन है, वहाँ से किसी चीज़ को लेके गए जितना भी, तो वही एच का वैल्यू हो जाएगा। सो दिस इज न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी of mass of mass 10 kg and lifting it by 5 मीटर। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, उसको 5 मीटर ऊपर किए हैं, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा? ऑब्वियसली देखो एनर्जी स्टोर हुआ मतलब कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है, पहले वो लिख देते हैं। मास 10 kg और हाइट कितना दिया हुआ? 5 मीटर। तो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। सब वैल्यू पुट कर देते हैं। मास कितना दिया हुआ है? अच्छा, वैल्यू पुट करने से पहले ये देखना पड़ता है कि सब सेम सिस्टम में है या नहीं। तो देखो यहाँ पे मास केजी में दिया हुआ है जो कि एसआई में है, हाइट मीटर में दिया हुआ है जो कि एसआई में है, ठीक है। तो दोनों ही एसआई में दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो एम का वैल्यू लिखते हैं 10, जी का वैल्यू कितना होगा? देखो अगर सभी एसआई में दिया हुआ तो जी का वैल्यू भी एसआई सिस्टम वाला ही लेंगे, जो कि कितना होता है? जी का वैल्यू एसआई में 9.8 ना, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 5। इसका वैल्यू पुट करेंगे, सो कैलकुलेशन के बाद आएगा 490, है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा? क्या निकाला हम लोगों ने? एनर्जी निकाला है ना। तो तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? सीजीएस में अर्ग होता है और एसआई में जूल होता है। तो अर्ग होगा या जूल होगा? देखो यहाँ पे सब एसआई में ही पुट किया, तो यहाँ भी आंसर भी एसआई में आएगा, तो ये क्या होगा? जूल, ठीक है। 490 जूल ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर हुआ है। क्लियर? एंड द अदर टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, first part was potential energy. That potential energy was due to the change of position or configuration. Okay, and the kinetic energy is due to the motion of a body. If a body is moving, it has got kinetic energy. Clear? Actually the term kinetic means motion. ठीक है, kinetic का मतलब भी क्या होता है? motion होता है। So kinetic energy का definition क्या होगा? Okay, so kinetic energy means the energy of a body due to its motion. ओके, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ है? किसी चीज़ का मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी पाया जाता है, ठीक है ना, मोशन की वजह से। ओके, मतलब अगर कोई कार मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर कार रुका हुआ है तो उसमें पोटेंशियल, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है? नहीं है, ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि उसमें मोशन नहीं है। अगर मोशन होगा तभी किसी चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली हम बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इसके कैलकुलेशन कैसे आया है। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किसी बॉडी का मास पे और उसका वेलोसिटी पे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², हाफ mv², ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ का मास पे डिपेंड करता है, उसका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो अगर दो बॉडी का सेम वेलोसिटी है
और एक का मास ज़्यादा है दूसरे के, तो जो पहला वाला जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हुआ। और हम वेलोसिटी से कंपेयर इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लो किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर 2 गुना बढ़ गया, ठीक है, मान लो किसी स्पीड से चल रहा था, उसका स्पीड अगर ट्वाइस हो गया है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर है ना, मतलब वो भी ट्वाइस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। किसी चीज़ का वेलोसिटी 3 गुना बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ेगा, 9 टाइम्स बढ़ेगा। किसी चीज़ का वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गया है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ेगा, 16 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे v स्क्वायर में है ना, इसलिए। सो दिस अ क्वेश्चन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 100 kg मूविंग विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ 100 kg, वो 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है उसको लिखना होगा हम लोगों को। मास 100 kg, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जस्ट इसका फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, हाफ mv² 1/2 मास कितना है, 100 दिया हुआ है, वेलोसिटी स्क्वायर यानी 25 इंटू 25, ये कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी 31250 जूल। ओके, वाई जूल, बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन SI सिस्टम। क्लियर? आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर क्वेश्चन। कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बॉडीज इफ द रेशियोज ऑफ देयर मास इज 1:3 एंड वेलोसिटी इज 3:1। क्या बोल रहा है, 2 बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, अगर दोनों का मास का रेशियो 1:3 है, ओके, और दोनों का वेलोसिटी का रेशियो कितना है, 3:1 है। समझ में आया बात? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ मास 1:3 है, मतलब अगर एक का मास m है तो दूसरे का मास कितना होगा, 3 गुना होगा, यानी 3m हो जाएगा। अगर एक का वेलोसिटी मान लिए v है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, v/3, क्योंकि देखो पहला का वेलोसिटी कितना, 3 गुना ज़्यादा है, यानी बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी 3 गुना कम है। ठीक है, देखो उसको हम कैसे लेते हैं, देखो ले सपोज फर्स्ट बॉडी का हम 1 करके लिखेंगे और सेकेंड बॉडी का 2 करके, तो m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, सपोज m ले लिए, तो सेकेंड बॉडी का मास कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। मान लो देखो यहाँ पे 3:1 दिया हो ना वेलोसिटी का रेशियो, तो 1 को हम लोग बेस लेके बनाते हैं, मतलब 1 किसका है, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी है ना, तो v2 कितना हो जाएगा, मान लिए v है तो v1 कितना हो जाएगा, 3:1, यानी अगर ये v है तो ये 3v होगा, क्योंकि पहला बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 3 गुना है ना, तो 3v। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, मतलब K1:2 K2 निकालना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K करके ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये कैसे बनेगा देखते हैं। सो K1/K2 करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं बेसिकली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ कैंसिल, m क्या बचा, m1/m2 इंटू v1/v2। देखो दोनों में स्क्वायर था ना, तो एक बार में हम होल स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, m1/m2 कितना होगा, ठीक है, m/3m, v1/v2 कितना होगा, मतलब v1 का वैल्यू कितना है 3v और v2 का वैल्यू कितना है v है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो जस्ट कैलकुलेट करो, m कैंसिल, ये v कैंसिल, क्या बचेगा 1/3 इंटू यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 और यहाँ पे 1 बचा ना, तो क्या हुआ ये वाला 9/3 मतलब 3/1। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, K1:K2 कितना होगा 3:1। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया बात? सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम लोग जो बचा है वो न्यूमेरिकल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। थैंक यू।